new topic related with games. You can start. Then what is games? Games is that when the man want to stay happier and be happy in life and pass their times and stay competitive, then the games will work in the story and in this story. In the earlier chapters, games are made very crucial role with be together with people and make them unified. Yes. The third question is, how does it works? It works with the people who want to stay socially active and make their links with the higher souls. Sports give them way to be a good person and a healthy person in life. If anybody go for playing games, then it makes it happy. There are two persons, like two things. Two is that the first is like games are the way to stay healthy, like healthy from mind and body also. And the second is the thing that the sports is that only activities that we can do in later time. Secondly, all positive traits for healthy mind and a healthy persons can be gained from sports. People who would sports physical fit. Healthy people make a healthy Life. Healthy connections. Like they know Relationships. They know both healthy people who are also be stay in be healthy. Who also stay in. Sports also teach us to how we go with failure and also with Victory. all the victories. It also be for someone it make a kick, and for someone Makes a kick, gives it, Okay. and someone is a stress buster. When we are in most feeling anger or stress and anxiety, then we go for the sports. It may be slow down our stressful and or we feel fun. Okay. Do you want to say anything else? So while speaking, so you used wants. No. Then games. Means when you are speaking, right? Then if your subject is singular, कर्ता एक रहता है, then you are to check your verb would be अनेक. Getting? अगर subject आपका singular है तो verb को भी singular ही रखो. If your subject is plural, then that verb will be, but that would be HV verb. वो HV verb होगी. So subject अगर singular है तो आपका HV जो है वो singular रहेगा. जैसे he है तो easy आएगा. लेकिन अगर subject आपका plural है तो आपका जो HV है, जो आपकी helping verb है, वो भी आपकी plural ही रहेगी, तो we के साथ R आएगा. अगर ये singular है, ठीक है, तो ये भी singular रहेगा, he के साथ is आएगा.
अगर ये प्लूरल है तो उसके साथ भी प्लूरल रहेगा, वी आर रहेगा। ये तब चलेगा जब ना वर्ब जो है वो मेन वाली नहीं है, दूसरी है, एचवी वाली है। तो सब्जेक्ट और एचवी के साथ जो है ही और इज रहेगा, वी और आर रहेगा। ये सेम चलेंगे, सिंगुलर का सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल। लेकिन जब सब्जेक्ट के आगे एचवी हट गया, वर्ब आ गई सीधी, अब सीधी वर्ब आ गई है, अब जब ही लगाया है तो अब इसमें सीधा गो नहीं आएगा, गोज हो जाएगा। और अगर वी लगाया है तो गोज नहीं होगा, गो होगा। अब क्या हुआ, सिंगुलर का प्लूरल हो गया, प्लूरल का सिंगुलर हो गया। अब ये गेम उल्टा हो गया। ये 4 तरह से एचवी बदलते हैं। जब सब्जेक्ट के बिल्कुल सामने मेन वर्ब नहीं आके एचवी वाली वर्ब आ रही है, तो एचवी जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेंगे। इसमें तीसरा ये है कि अगर विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट है तो वो एचवी देखते नहीं, ठीक है। अगर डिड है तो वो भी नहीं इस साइड आएगा, उसमें सारे ही आएंगे। लेकिन अगर डू डज आएगा तो फिर वो बटेगा, वो आधा आधा होगा। तो जब सब्जेक्ट के आगे एचवी है मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब ही, क्योंकि जो ये आपके इज़म है, वजवर है, हैज़व है, ये सारी वर्बें ही हैं। हैज़व ये 6-8 वर्बें ही हैं, लेकिन ये वर्बें बी होती है ना, बी ही इज़म है, बी ही वजवर है, बी ही हैज़व है। तो ये जो 8 हैं ये बी हैं, वर्ब है, फर्स्ट है। लेकिन ये जब मेन वर्ब की जगह से पहले आ गई एचवी तो सिंगुलर का सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल। लेकिन अब एचवी को बाहर निकाल दो, एचवी सारे बाहर निकल गए। अब आ गई फर्स्ट वर्ब, सिर्फ फर्स्ट वर्ब। अगर सेकंड होगी रूल चेंज, थर्ड होगी रूल चेंज, आईएनजी होगी रूल चेंज। बात सिर्फ फर्स्ट वर्ब की होगी। अगर फर्स्ट वर्ब आ गई और इधर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो प्लूरल हो जाएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो सिंगुलर हो जाएगी। उल्टा है, क्रॉस करेंगे, सामने नहीं करते। मेन वर्ब और सब्जेक्ट सिर्फ पहली फर्स्ट वर्ब, दूसरी तीसरी आईएनजी वो सब छोड़ दो, सारे एचवी छोड़ दो। लेकिन अगर फर्स्ट वर्ब को आपने लगाना है तो सिंगुलर होगा तो वो प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगी, वो क्रॉस करेगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जब वर्ब ही पीछे होगी, एचवी आ गया आगे, अब एचवी उसको कैसे चलाएगा, सिंगुलर का सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल। ये 4 वैरायटी होगी। और एक जो इधर आ गया, जो आपको कहा कि पीछे की सारी वर्बें, ये 5वीं वैरायटी हो गई है। और एक ये सारे एचवी की तरह कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो ये 6 तरीके से हो गए, धीरे धीरे अगर समझ पाओ तो आप क्या बोल रहे हो, आपको सुनना है कि अब जैसे मैं गेम कह रहा हूँ कि गेम्स कह रहा हूँ। अगर आप गेम कह रहे हो तो फिर वॉन्ट आएगा कि वॉन्ट्स आएगा। अगर गेम कह रहे हो तो वॉन्ट्स आएगा, अगर गेम कह रहे हो तो इज आएगा, गेम इज आएगा या वॉन्ट्स आएगा, ठीक है। अगर गेम्स हो गया तो इज चला गया आर में और वॉन्ट्स का एस गया कट, आ गया वॉन्ट। सिर्फ एक ही दिक्कत है, ये सिंगुलर और प्लूरल की ग्रामेटिकल, और कहीं नहीं है। सब्जेक्ट में ही होता है आपका गड़बड़, और कहीं नहीं है। ऑब्जेक्ट ठीक है, वर्ब क्या लगनी चाहिए इसके साथ वो भी पता है आपको, वर्ब क्या लगेगी वो भी पता है, एचवी क्या लगेगा वो भी पता है। बस करता कौन है मेरा, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव मेरा कौन सा है। वो केस होती है ना, मेरा सब्जेक्ट याद है, ऑब्जेक्ट हैवी है कि पॉजेसिव है। तो उसमें आपको सिर्फ आपकी पहले ही सिर के ऊपर जो है दिक्कत है कि जब ये एक है तो ये अनेक होगा, जब यही अनेक है। अब ये तो हमने ही शी के हिसाब से किया। अब जैसे आप वही, जैसे अब आप मोबाइल की बात करो या बाइक की बात करो तो बाइक इज आएगा, बाइक्स आर आएगा, बाइक इज आएगा, बाइक को ऐसे लग गया तो बाइक्स आर हो गया। अब अगर बाइक है, एचवी लगाना है तो बाइक डज आएगा, बाइक को डज आएगा, लेकिन बाइक्स को डू आएगा। क्योंकि देखो जब बाइक अकेली थी ना, सिंगुलर थी ना, तो वर्ब को हमने डज लगा दिया ना, प्लूरल कर दिया। एचवी समझो या वर्ब समझो, ठीक है। अब बाइक्स का, बाइक को हमने बाइक्स कर दिया, अब डज को वापस डू मिलेगा, क्रॉस आमने सामने नहीं खड़ेंगे। आमने सामने बाइक इज, बाइक्स आर, एचवी खड़ेंगे आमने सामने, वर्ब नहीं खड़ेगी। वो भी सिर्फ फर्स्ट वाली की बात होगी। अगर वर्ब सेकंड लगानी है, अब बाइक वेंट लगाओ, बाइक्स वेंट लगाओ, वेंट नहीं बदलेगा, ये बदल रहा है अभी भी, सिंगुलर प्लूरल खेल रहा है ये अभी भी। वर्ब सेकंड है, वर्ब
होगी ना खत्म। फर्स्ट ही गई, सेकंड आ गई। अब सेकंड को कोई मतलब नहीं आगे कौन खड़ा है, बॉय है या बॉयज है, ठीक है, गेम है या गेम्स है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप पास्ट में हो तो सिंगुलर प्लूरल गया, ये भी खत्म है। जब आप पिछले पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आपको पता है कि पास्ट है, सिंगुलर प्लूरल की गेम है ही नहीं यहाँ पे, सिंगुलर प्लूरल की गेम ही नहीं है, तो वहां पे लेके क्यों जा रहे हो एसईएस, आएगी नहीं। और जब आप फ्यूचर में जा रहे हो तो वहां पे भी नहीं आएगी, प्रेजेंट में गेम रहेगी एसईएस की। और अब आपकी रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप कोई वॉइस बना रहे हो या फिर आप कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो, है ना, कोई आप नरेशन बना रहे हो, तो नरेशन में तो वो जो है एसईएस का, फिर वो तो तीनों में रहेगा। अगर आप डायरेक्ट स्पीच बना रहे हो, ही सेड, शी सेड, कुछ भी डायरेक्ट स्पीच बना रहे हो, तो चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, चाहे प्रेजेंट का कुछ भी बना रहे हो, तो ही सेड से पता चल गया पास्ट है। उसकी अगली लाइन तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी हो सकती है। लाइक ही सेड या शी सेड या आई सेड, कुछ भी लगाओ। उसके बाद ही सेड ही गोज फॉर वॉक डेली, अब तो पास्ट में भी आ गया। हाँ, वो जाता है, जाती है। तो इसमें ही सेड ही गोज फॉर वॉक डेली, ये तो डायरेक्ट स्पीच होगी ना, तो इसलिए पास्ट में भी एसईएस चला। अब इसको तोड़ोगे तो ही टोल्ड दैट ही, नहीं अभी तो वर्ब भी फर्स्ट थी ना, सेकंड होगी, वेंट फॉर, तो इनडायरेक्ट स्पीच का आगे चला गया ना सिस्टम, डायरेक्ट इंटरकरेक्ट होती है, उस वक्त एसईएस तीनों में जाएगा उस वक्त। लेकिन जब आप एक्टिव वॉइस में हो तो ये सिर्फ एक जगह पे रुकेगा, प्रेजेंट। अगर आप पैसिव वॉइस में जाते हो तो ये फिर तीनों में जाएगा, फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा, फिर वो आपने कहना क्या वो तो उस पर डिपेंड करेगा। सो गेटिंग माई पॉइंट, सो टुडे sufficient for that? Good.